morning, everyone. I would like to welcome you all for this online industry session. First of all, I would like to welcome our Honorable Head of Department of Mechanical Engineering, Mr. Deepak Khurana. Welcome, sir. Now, I would like to extend my welcome to all faculty members and the HODs present here and my dear students. Today, we are gathered here or joined this session to know more about the industry and to know more about the skills which are required for being an industry-ready person. I would like to welcome Mr. Hitesh Kumar and Mr. Sarvesh Nagpal to please guide us about the skills required in the industry. Mr. Hitesh Kumar is currently working as SAP consultant, and Mr. Sarvesh Nagpal is currently working as financial analyst. Okay, so hello everyone and welcome to today's talk. And the topic of our session would be prerequisites for employment. And hello. Hello. Good morning, Mr. Sarvesh. Thank you, Deepak sir. Good morning. Actually, I was not able to unmute myself. My volume was muted. So now I think someone has unmuted me. So I welcome first of all the students of BTech, CSC, Mechanical, Civil and Electronics. All students we have invited because this is a general topic given by you that what are the prerequisites for the employment, right? Because job opportunity is very rare nowadays, very difficult to attain, and not difficult. I will not say difficult, but it is you require some extra skills apart from your regular degree, which today Sarvesh and Hitesh will mention that what skills you require apart from your BTech degree. So employment is a challenging nowadays, and alumni meet is very important these days because sometimes there is a gap between teacher and students, and we are not able to convey. And sometimes students do not listen to us because in our BTech time also we follow our alumni, our seniors. So this is a trend that generally students listen more to their seniors and alumni. So that's why we have started a series of alumni lecture, and we have started with mechanical engineering now with Sarvesh and Hitesh. There are good students and reputed job they have nowadays, and they also show that how can you shift from one branch to another. If you are having some software skills, you can shift from mechanical to other branch also. So dear students, it will be highly helpful for you people, this alumni lecture, and we will be having more lectures like these in our coming days. And Mr. Sarvesh, you are Sarvesh, no? Sarvesh, you have started. Dear Sarvesh, thank you. Now I will thank you for giving the lecture. Once we have postponed your lecture, and now you have given a precious time of yours. We are thankful to you. Please start the session, and I hope that the session will be highly useful for the students. So, Hitesh and Sarvesh, start the session, please. Thank you. Thank you, Mr. Deepak. So Deepak sir was talking about like how difficult or rare it is these days to find the correct job for yourself. But I'd like you to know that you have no need to worry about this. So we as seniors, don't consider us as seniors, but consider us as your friends. So we were in the same situation as you are right now, and we know exactly what doubts or what insecurities you might have in your mind. So my advice for you is to feel free to throw any kind of doubts at us during the entire session of 1 hour or so. We'll try and give the answers to you for all the doubts, no matter how silly or how trivial those doubts sounds to us. So don't hesitate in asking the questions. That is what is our advice to you will be for today. So anyway, so first and foremost, I hope that you all are keeping safe, your families are safe during these COVID-19 times. As much as we would like to have had a offline connection with you, but given in the interest of times,
whatever we could do was to virtually connect with you, and we appreciate and we are honored that we are given this opportunity by college management that we can connect virtually with hundreds of students in college and from all the branches. Earlier, uh, uh, I was known that this session was only being conducted for mechanical, but then Deepika told me that professors and HODs wanted to have this session for all the stream students. So again, so I'm very much honored to be speaking to all the students of all the branches because of the topic of the session is directly related, not directly related to any of the branch, and it is a very broad topic that we'll be speaking with, that will be giving you the information about. So I'm highly indebted to all the college members, the entire SGTC family, in particularly Department of Mechanical Engineering, Mr. Nitesh, Mr. Kailash Atri sir, Professor NJ Dembi, I know he's not in the college right now, and Mr. Vivekanand Jha sir, for helping us develop our thinking, for helping us, broadening our way of thinking and giving us all the knowledge that we can now utilize in the real world and moreover achieve more success. So today's session will be more about you and less about us. So we have planned this session in such a way that this will give you a good opportunity for all of you to throw all your doubts at us. And also at the end of a session, we have planned a very important mock interview session for you. Don't worry about the mock interview session. That is a real life simulation, like a real life simulation of what actually awaits you when you go into an interview. So please be patient throughout the session, and I'm sure there'll be a lot of takeaways for you in this session. So if you know, in this COVID world, when the COVID-19 hit, many companies literally crashed. They had to lay off the entire staff, and there were companies that had to lay more than 50% of the staff. But in these examples of such companies, we also had certain other companies who did not, bear the brunt of the COVID-19, and if I have to say in one word, they were pandemic proof. Now, the only reason I can see why they were pandemic proof, being a part of such a company, is because their foundations were strong. Whatever they did, they were strong. They had strong customers, they had strong clients, they had strong employees. So now my advice to you is today for this session is, and takeaway would be, keep your basics strong. Today I'll not be talking, I and HK both will not be talking about some fancy technologies like AI, machine learning, etc. But we'll talk about and give stress upon those basic skills that you can work on. Anyway, without wasting much time, let's quickly introduce ourselves. So my name is Sarvesh, as you know. I am an ex-student of mechanical engineering from the same college that you are in. I am currently working as a financial analyst with Cvent, which is an events technology software firm which is headquartered in Virginia, United States. Our company specifically deals with the event and hospitality clients, the clients who want to have, extra large, very big events of, thousands and lakhs of people, corporate people joining in. So our company prepares, all the software, all the mobile application things and everything there, from the attendee management to registrations to all end-to-end event technology process. And also we deal with lots of hospitality clients such as Hilton, such as IHG, Crown Plaza, all these big names in the industry. And this is our big portfolio of clients. We deal with Google, we deal with Salesforce, we have contracts with Facebook, etc. So these are our clients. So I have not only worked as a financial analyst, although you might have doubts like why I did mechanical engineering and then entered into a field which is of nowhere near to what I studied in the subjects that were there in mechanical. But what I'd like to let you know is that you have to keep your eyes open. You have to see all the things that are there in the industry, what all the fields that are growing, and we'll talk little bit more about that then in our later part of these slides. And
apart from that, I also worked as a analyst with startup called Ola. So Food Panda was acquired by Ola, and I also worked as a junior analyst over there. And I have experience working as a technical writer. Uh, Technical writing was my very first opportunity that I received from the campus itself. So that was mainly on the mechanical side of things. We were dealing with, all the engine manuals of companies like Caterpillar, Cummins, Detroit, all these big manufacturing firms that manufacture engine. And soon I realized that probably uh, my mind and my heart wanted me to go into a field that is much more towards aligned towards IT sector, because I was keeping up with all the news that India is since India is one such hot top destination for companies in United States to have their offices, corporate offices controlled in India, and they were giving good work to Indian professionals because of the repertoire Indian professionals have built over the years. So thank you for again giving us a chance. Now I'd like to invite Mr. Hitesh, who will be giving an introduction. Hello, thank you, Sarvesh. Hello, everyone. Good morning. And I would like to tell something about myself. I'm right now working as an SAP consultant in Tata Technologies. And before that, I've been working with a startup where I've worked in kind of different roles going from starting from design engineer to and then business development, then going up to ERP implementation or consultant, right? So similar like Sarvesh, I've also tried like quite a few. I've been involved in quite a few different jobs, or you can say quite a different areas. The job that usually not everyone pursue. So that is kind of a great opportunity for us to interact with you and give our insights that we have accumulated in last like 4 years, and how the things have changed considering the current year and the previous 2-3 years. And we'll be able to guide you on how to like shift from one stream to another that will be considered. Now, Sarvesh, you can just if you would like to continue with the Yeah, next thank you, Hitesh. So this was something about us. So I'd like to include a few more informal points, like what is common amongst us is, yes, as you all know that we are from the same college, we were from the same batch, we used to sit together and on the same desk, we have the same mechanical engineering degree. And most importantly, we had the same approach towards exploring the career options. So basically, we were not thinking, in a very narrow form. We always had a broad approach. Also, we like to talk all about our group, our friends, enabled us to have this, big vision towards life. And so one more advice I'd like to give you is that, always keep a group of friends that are from different arenas of life, because they open up your entire vision. सो एक चीज जो इस स्लाइड पिछले स्लाइड में कवर नहीं हुई थी कि हम सेम बैच में थे, सेम डेस्क पे बैठे, सेम डिग्री, वी वर द पार्ट ऑफ द सेम ट्यूशन ड्यूरिंग आवर क्लास 12th. सो वी वर स्टडिंग इन अ ट्यूशन फॉर फिजिक्स. तो फिजिक्स के ट्यूशन में भी हम लोग साथ थे. उसके बाद आई कुड रिकॉल अ मेमोरी व्हेन आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड अकाउंट्स ऑफिस इन द कॉलेज, एंड suddenly this person comes up to me saying, hi, my name is Hitesh, and I could recall everything right from those physics lectures to today, when I can recall all those thermodynamics, strength, SOM, KOM, everything, all those important mechanical lectures that we have been through. So again, matlab, we started together, we are together, and we'll stay together. And we hope that using our own fears, using our own failures, our successes, we can assure that you have a lot to learn about, and you can take much more advantage of it. So I'd like Hitesh to tell us more about what was our approach during our college days and what is the approach that we follow right now. Yeah, so Sarvesh, that was quite a memory lane for me as well. Yeah, so basically, we have participated in all the extracurricular that we could
एक्सेस टू, मतलब जो हमारे कॉलेज में हुआ वो तो ठीक है, हमने और कॉलेजेस में भी जाके ट्राई किया जहाँ पे भी हम ट्राई कर सकते थे. So we explored all those options as well. हमने और दूसरे स्ट्रीम्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे, प्रोफेशनल्स थे, we interacted with them as well, and we kept ourselves like up to date with what is going on right now in the market. And also at that point of time हमारे लिए एक लर्निंग अप्रोच सिर्फ ये नहीं थी कि हम सिर्फ जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या बुक्स में जो है सिर्फ वहीं से वहीं तक रखें. वी यूज्ड टू जस्ट गो बियॉन्ड दैट एंड सर्च फॉर एनीथिंग दैट वी कुड फाइंड ऑनलाइन, like YouTube, edX, and some other websites as well, which I'll be mentioning later part of the session. So these were the options that we kind of utilized and kept ourselves up to date. And उसके बाद हमने कुछ mock interviews भी हम करते थे, like even among our friends. हम लोग यूजुअली मंथ और 2 मंथ में एक ऐसा इनफॉर्मल एंड फॉर्मल काइंड ऑफ सेशंस रखते थे थ्रू जस्ट. तो उससे क्या होता था कि वी यूज्ड टू get that hesitation of introducing ourselves and that like basic question that we get asked in the interviews, at least वो हमारे कवर हो गए. तो वहाँ से एटलीस्ट वो हेजिटेशन हमारी निकलनी शुरू हो गई कि हम अपने बारे में बात कर सकें. सो दैट इज क्वाइट अ बिट ऑफ हेल्प. एंड उसके साथ साथ हमने बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी ट्राई करी विद इन दैट टाइम पीरियड. ऑन दोस इन दोस 4 years हमने बहुत सारी अलग अलग इंटर्नशिप्स भी ट्राई करी, जिससे हमें बहुत एक आइडिया हुआ कि what exactly are those works or the jobs that we'll be working in like for the rest of our lives. So उससे हमें थोड़ा और गेज करने में हेल्प मिली कि भाई हम और क्या क्या कर सकते हैं. So and now time for a poll. आप लोगों को ये QR कोड दिख रहा है, आप अपने फोन से इसे प्लीज एक बार स्कैन करें एंड एक पोल है हमारा, जस्ट उस पे जाइए एंड you can just give all those answers that you have and we'll be showing all those answers and questions on that on the next slide. Yeah, it's a very simple question and it's an open-ended question. So you can, there are no options, no predefined options. You can say whatever you want to say, and so go to that QR code and scan the question. Also like give us a heads up as well in the chat how many people have done it, so that हमें पता चल जाए कि कैसे कितने लोगों ने कर दिया, just to ensure time waste ना हो उसके बाद. So I just opened the voting for another 58 seconds. So there were 1 minute of total. So the voting to be closed in 50 seconds. So we can quickly go to the option to the QR code and so I'm getting responses like you, sir. So the question was, what do you want to do after completing BTech? Great. Anyways. Thank you, Sahil. So you can go to www.menti.com and enter the code 445278 if you are not able to scan the QR code. Yes, you can scan using your either the camera or your Paytm apps or any of the UPI apps. You can use the scanner. Don't worry, it will not gonna send money to us through the Paytm. Yeah. I think the voting has been closed. Anyway, so students, can you can you tell us in the chat window whether you were able to give us the answers to the question, or else I'll open the voting for another 30 seconds. Chetan, the code is in slide right now. So I think yes, many students were not able to give us the option. So I'm opening the voting thing again for another 30 seconds. So quickly go and give us the options.
So are we done with the question? Okay. Hitesh, if you could unshare our screen and so that I can share the screen. Yeah, go ahead. Yeah. So let's look at all the options that you have selected. Can you tell me in the chat window whether you are able to see my screen or not? Yeah, now we can. Mahir said no, it's not visible, not yet. Manish Karnatak saying yes, Shabas. Okay. So there might be a delay due to the internet connection. Anyway, so I see responses as yes, now it's clear. So this was a very, very simple question, like a very open-ended question, because many people have selected they want to appear in Gate. Someone said they want to go for an IT corporate job, and some people were very much particular. They want to be a Django developer or Java full stack developer. Someone said they wanted to do a government job in technical sector. I hope that is technical word. Someone wants to do MBA. Someone wants to do a dream job. They are not sure about what they dream about. But yes, a dream job. It's okay as open as that. So you might be able to discover what exactly is your passion. So that's the whole intent of the session, is be open about things. Be open, try new things, try experimenting with things. So a dream job का फिर हम एक proper definition दे पाएंगे. A dream job that involves this. Maybe MBA or job, ठीक है, confusion है, and there is some who says I don't know. Okay, हमें भी नहीं पता था. Many of us during our college days probably do not know what exactly they want to do. Someone wants to go in car designing. I hope he's from mechanical or even from other streams. I don't know about that. Being entrepreneur, create something creative. I want to be a footwear designer. Oh, that's cool. That's a different field. Someone says football I league. Okay. Interested in sports. Okay. Job or maybe MTech government. Okay, great. So थोड़ा हम लोगों ने ये एंटिसिपेट कर लिया था पहले ही, तो हम लोगों ने भी कुछ यही आंसर्स आप लोगों के थे जो कवर अप कर लिए. सो जस्ट कंफर्म इफ यू गाइस कैन सी द स्क्रीन. सर्विस कैन फील स्क्रीन. Yes, I can. Yeah, continue. हाँ, सो हम लोगों ने ये थोड़ा एंटिसिपेट कर लिया था पहले से कि क्या ही ऑप्शंस रहे थे, या जो भी हम लोग के डाउट्स थे वो यही थे. कैटेगराइज अगर हम करें कि जॉब, हायर स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप कि भाई अपना ही काम करना है किसी को, एंड गवर्नमेंट जॉब्स, डिफेंस. तो दीज आर लाइक बेसिक 4-5 जो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, वो इन सब में कैटेगराइज हो जाते हैं. सो इसमें से अभी हम बाकी चीजों को छोड़ के अभी सिर्फ बेसिक जॉब के बारे में बता रहे हैं, so that you will be able to get to know how to like pursue that in a just like basic way. So उसके साथ में अभी एक क्वेश्चन और है आप लोगों के साथ. You are seeing these 5 points here. सबसे पहला है लर्निंग, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन एंड रिम्यूनरेशन, दैट इज लाइक सैलरी और मनी यू कैन से. So you have to arrange them and send it to us in the chat box. और उनको अरेंज करो इस तरीके से कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो सबसे पहले आए, और जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सबसे लास्ट है. Hitesh, someone is saying that your PPT window is not clear. Could you check your internet connection, please? Even I am not able to see your PPT window clearly. Okay. Could you reshare your screen first, unshare, and then try sharing that? Okay. That might solve the issue. So in the meantime, you can send us your questions through the chat window as well. So कोई भी question अगर है दिमाग में, so you can write it in the chat window. अभी is it clear? To me it is not, but let us wait for other participants to chime in.
If you want, I can share my screen. Okay, can then let's. So is it visible now? Yeah, it's really good. Okay. So yes, Hitesh, go on. हाँ, सो हम यही बात कर रहे थे कि सबसे पहले जो हम लोग जब जॉब चूज करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ फैक्टर्स होते हैं कि भाई कैसे कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे कुछ ये 4-5 फैक्टर्स रहते हैं सबके लिए, और उसमें से ज्यादातर लोग तो यही देखते हैं कि भाई रिनोमिनेशन है, पैसा किस में सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो बस हमारा एक क्वेश्चन है कि आप लोग इसको अरेंज करें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसको सबसे पहले, एंड लीस्ट इम्पोर्टेंट एक जॉब को डिसाइड करने के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, उसको सबसे लास्ट में रखें। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट को पहले और सबसे कम इम्पोर्टेंट को लास्ट में। सो आप इस तरीके से आप रख सकते हैं, एंड आपका आंसर्स आप लोग शेयर करें चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन नो कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। एक ऑप्शन नहीं है गुलशन, आपको थोड़े इसको सबको एक साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। आशुतोष सिंह, व्हाट इज 53241? यहाँ पे नंबर्स नहीं आ गया एक्चुअली ना। ओके, सो बहुत सारे आंसर्स आ गए हमारे पास। सो मूविंग ऑन कि अभी हमारे हिसाब से क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से अभी यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत लोगों ने रिनोमिनेशन भी पहले लिखा है। ओके, सर्वेश कैन जस्ट गो द नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारे हिसाब से ये ऑर्डर होना चाहिए हमेशा डिसाइड करने के लिए कि जॉब की, और एक तरह से जॉब का साइकिल भी यही होता है कि आप सबसे पहले लर्निंग स्टार्ट करते हैं, देन आपका धीरे धीरे ग्रोथ होती है, आप धीरे धीरे चीजें सीखते हैं, समझते हैं। अराउंड 6 महीने 7 महीने में आपको चीजों की क्लैरिटी आना शुरू होती है। देन उसके बाद आप स्टेबिलिटी जोन में जाते हैं कि भाई हाँ, अब आप चीजें संभाल पा सकते हैं अपने आप में। एंड जब वो स्टेज आती है उसके बाद आप सेटिस्फैक्शन आपको अचीव होती है कि एक्चुअली में हाँ, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे। एंड देन आपका आता है रिनोमिनेशन, कि आपका जो लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए कि आपको पैसे तो आपके बाद में आ जाएंगे, बट आपका जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे आपने वो जॉब चूज करी है कि नहीं, सबसे पहला इंटरेस्ट आपका वो होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको साल में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बट आपको काम वो अगर पसंद नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप बहुत चीजें और ऐसी कर सकते हैं, बहुत बहुत चीजें कर सकते हैं, बट कब तक करोगे? तो दैट इज द थिंग। उसके बाद अभी हमारा मेन पॉइंट ये है कि हाउ टू चूज अ करियर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है हमारी, जो कि आप थोड़ा अगर समझे तो, क्योंकि सबसे यहाँ पे हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि आप पहले अपने इंटरेस्ट फिगर आउट कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार इंटरेस्ट, आपकी जो स्ट्रीम आपने चूज कर ली है उसी में ही दिखेगा, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम होता है। वहाँ पे आपने, अगर जैसे मैं अपना बताऊँ, मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, बट इवेंचुअली जब मैं मैकेनिकल में गया तो मुझे मैकेनिकल सब समझ आता है, बट मुझे कुछ कुछ पार्ट्स थे ऐसे जहाँ पे मुझे थोड़ी कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने वहाँ पे स्विच करता रहा और मैंने एक ऐसी फील्ड ढूंढी जहाँ पे मेरा मैकेनिकल का नॉलेज भी यूज हो रहा है, एंड जहाँ पे मैं कंप्यूटर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स के लिए भी काम कर रहा हूँ बेसिकली। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्शन प्लानिंग कंसल्टेंट। एक मॉड्यूल है हमारा सैप में, तो दैट्स व्हाट आई टेक केयर ऑफ। तो आपको इंटरेस्ट आपका देखना सबसे पहले। उसके बाद करना है कि आपको साथ साथ ये भी देखना है कि उस क्या बोलते हैं, उस इंटरेस्ट में आपको ग्रोथ भी कैसी है। आपको ये भी देखना है कि ये ना हो कि आप ऐसे चूज कर लें कि इंटरेस्ट तो है आपका, बट आप उसमें ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी फिर आपके लिए एक हिंड्रेंस हो जाएगा इन द लॉन्ग टर्म। तो वो भी नहीं करना आपको। साथ साथ पे अगर आपको ये पता चलता है कोई भी जॉब करते हुए, शुरू करते हुए,
कि यू डोंट लाइक दैट जॉब, तो आपको उस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये देखना है कि मुझे और क्या बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं और उसमें मैं कैसे एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्विच कर सकता हूँ। ऑल्सो ये आप मतलब शुरू के 5 साल या 7 साल 10 साल के अंदर ही कर सकते हैं, मतलब एडवाइजेबल ये तभी है, बाकी चेंज करने को तो खैर कभी भी कर सकते हैं, बट वही है कि आप इनिशियल डेज ईयर्स में आप ये मत समझिए कि आपने एक पकड़ ली है तो एक स्ट्रीम है तो जिंदगी भर उसी पे रहना है, ऐसा नहीं है। आप स्विच कर सकते हो, आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट और बेटर करना पड़ेगा, तभी आपको स्विच कर पाएंगे। और हो सकता है, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, आप चाहे कितनी भी बिजी जॉब में हो। नेक्स्ट इज अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब है जो आपको ऑलरेडी पसंद भी है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट उसमें 1 साल तो अपना स्पेंड कीजिए, सो दैट एटलीस्ट 1 to 1.5 year, सो दैट कि द थिंग इज जब आप शुरू करते हैं कोई भी जॉब तो एटलीस्ट 6-7 महीने तो आपको उसको समझने में, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं वो सब समझने में लग जाता है, और आपको एक क्लियर पिक्चर आती है 1 साल के बाद ऑलमोस्ट। और जब आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो वो 6 महीने तो एक वो समझ लो कि वो कंपनी आपको पे कर रही है जस्ट फॉर लाइक टीचिंग यू। तो आपको एटलीस्ट जस्ट पार्ट ऑफ अ वर्क एथिक कि आप अगले 1 साल तो एटलीस्ट उनको दें, और उनको जो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको ROI कह लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मिलनी चाहिए एटलीस्ट। तो वो आपके एक तो रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं उससे। नेक्स्ट इज उसके साथ साथ में आपको एक चीज और देखनी है कि ऐसी कौन सी जॉब्स होंगी जो अगले 20 साल में या 10 साल में जो कि रेलेवेंट रहेंगी। बिकॉज बहुत सारी मेरे कलीग्स हैं अभी जो कि ऐसे मुझे मिल रहे हैं जिनको जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, एंड सडनली ये जो कोविड सिचुएशन हुई इसकी वजह से वो दे आर आउट ऑफ जॉब्स, सो सडनली दे हैव टू थिंक अबाउट न्यू थिंग्स। तो आप उस टाइम पे शायद वो रिस्क लें और करना, वो सब चीजें आपको करनी पड़े जो आपने शायद पहले ना करी हो, क्योंकि जब 10 साल पहले हम देख रहे थे तो वो चीजें बहुत मेन स्ट्रीम थी और उसमें बहुत इन्वेस्ट भी किया था हम लोगों ने, जिसकी वजह से हम आगे फिर वो अब जब 10 साल बाद जब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे वो इररेलेवेंट फील कर रहे हैं अपने आप को। तो ऐसी जॉब ढूंढनी है अब आपको जो आपको अगले 20 साल तक भी कोई भी सिचुएशन आए आप रेलेवेंट रहो इंडस्ट्री में। ऐसा ना हो कि आप कि जब टाइम आए तो उसके बाद वो चेंज हो जाए। Sarvesh, if you can go to the next slide. So some of the examples that जो अभी हम लोगों के सामने है, that is data analyst, क्योंकि वो काम अभी कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। आई थिंक अभी हमारे परसेप्शन और व्यू से डाटा एनालिस्ट, कंसल्टेंट्स इन लाइक इवन so many ERP and CRM softwares, ERP होता है एंटरप्राइज मैनेजमेंट, बेसिकली आपकी कंपनी को मैनेज करने के लिए। तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी कंपनीज रहेंगी, कंपनी को मैनेज करना रहेगा। हाँ, उनके तरीके चेंज होते रहेंगे, तो यू विल हैव टू अडेप्ट एंड लर्न कॉन्टिन्यूसली, बट ये नहीं होगा कि वो जॉब्स कभी भी खतरे में होंगी। सो दिस इज वन थिंग। डेटा साइंटिस्ट, टेक्निकल राइटिंग एज सर्वेश हैज मेंशन्ड, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट इन स्टार्टअप्स मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज बिजनेस डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको एक पूरे बिजनेस के सारे ऑप्शंस सीखने को मिलेंगे। नॉट जस्ट कि अगर आप प्रोडक्शन में हो जस्ट, या इवन अगर आप नॉर्मली किसी एक नई कंपनी में जाते हो और वहाँ पे आपको फ्रॉम स्क्रैच कैसे एक कंपनी को खड़ा करते हैं वो नॉलेज मिलेगी, तो वो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ भी बहुत हेल्प करती है। दैट इज क्वाइट अ बिग game changer for all of us. Sarvesh, you can continue with the further slides. Sarvesh? Sorry. Yeah. So thank you, Hitesh, for such a detailed introduction about क्या options pursue कर सकते हैं students. So I see you talked about data analysis. So I'll take a minute or two to speak about that one, because I'm personally working as a data analyst with Cvent, and I have also worked as an analyst with Food Panda earlier. So the reason I'll say those jobs जो अभी पीछे दिखाए in the previous slide are pandemic proof is because आज के टाइम में अगर देखें, if we see India is one such country where there are maximum number of smartphone users. ठीक है, हमारे देश में इंटरनेट जब से जियो आया सबके पास है,
सिंपल सी भाषा में ये बोलते हैं। अब इंटरनेट आया, सबके पास है, अब हम लोग हर मोमेंट पे, हर सेकंड में टेराबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट कर रहे हैं। अब नई नई कंपनीज, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अब किसी स्टार्टअप को आज से अगर 10 साल पहले कोई कुछ बिजनेस लॉन्च करना होता था, तो एक स्टार्टअप में सबसे पहले चीज होती है मार्केट रिसर्च या मार्केट सर्वे। अब मार्केट रिसर्च या मार्केट सर्वे में पहले इतना ज्यादा डेटा नहीं होता था, या फिर इतना ज्यादा कह सकते हैं कि इनिशियल हिस्टोरिकल की क्या चीज है जो लोगों को पसंद है, लोगों के प्रेफरेंसेस, ये सब इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। और अगर होते भी थे तो बहुत कम होते थे कि बहुत ज्यादा इंसाइट्स नहीं निकल पाती थी। सो एज ऑफ नाउ, आज के टाइम में डेटा इज लाइक देयर इज टेराबाइट्स ऑफ डेटा। हम लोग हर दिन इतना डेटा जनरेट करते हैं कि कंपनीज दे वांट टू टैप इनटू द कस्टमर प्रेफरेंसेस, हर कस्टमर के अकॉर्डिंग। सो जस्ट टू गिव यू एन एनेक्डोट, अभी यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं। सो जब लास्ट टाइम में इलेक्शंस हुए थे, देन देयर वाज वन कैंपेन जो बहुत फेमस हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि देयर वाज वन कंपनी जिसने यूएस के जितने भी वोटर्स थे ना, सब वोटर्स के अगेंस्ट दे गैदर्ड अराउंड 50 डेटा पॉइंट्स। हर बंदे के अराउंड 50 डेटा पॉइंट्स थे उनके पास कि ये बंदे को ये पसंद है, इस बंदे को ये नहीं पसंद है, इस बंदे को पर्टिकुलर कैंडिडेट पसंद है या ये नहीं पसंद है। तो उन्होंने क्या किया, वो उस डेटा को यूटिलाइज करके दे स्टार्टेड showing certain kind of advertisements or certain kind of posts on their social media platform on Twitter की जब भी वो सोशल मीडिया यूज करते थे, अगर उनको ट्रम्प के खिलाफ कुछ बोलना है या फिर बिदेन के खिलाफ कुछ बोलना है या फिर किसी और कैंडिडेट के खिलाफ और कुछ बोलना है, तो उसके अगेंस्ट राइवल पोस्ट में उसके सामने, कैंडिडेट के सामने वो आता था। तो इस तरीके से डेटा को यूटिलाइज किया गया इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द वे यू थिंक। सो ये तो हो गया डेटा का एक साइड ऑफ यूज। बट कंपनीज इसको कैसे यूज करती हैं? कंपनीज के लिए डेटा, आई टेल यू, इज द न्यू ऑयल। वो ऑयल है इन ऑर्डर टू ड्राइव द ग्रोथ। दे यूज डेटा टू एनालाइज कि हमारे को अगर इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपैंड करना है, मेरे को आज के टाइम में मिडल ईस्ट में मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे को मिडल ईस्ट में अपना बिजनेस को ग्रो करना है, तो पहले वो मिडल ईस्ट की पूरी के पूरे जितने भी वहाँ के क्लाइंट्स हैं, हम सबसे पहले देखेंगे हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उन कॉम्पिटिटर्स के साथ उन क्लाइंट्स का कितना बिजनेस है, और फिर अगर वो इतना बिजनेस है तो कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट्स वो साइन करते हैं, कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। देन वी गो डीप इनटू व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे एक्चुअली परचेज। ऐसे कर करके देन एक्चुअली द सेल्स टीम गो एंड अप्रोच द क्लाइंट्स। तो ये सारे तरीके कि हाउ कैन डेटा एक्चुअली हेल्प्स कंपनीज टू ग्रो, टू फर्स्ट ऑफ ऑल to form, to establish, and then to grow rapidly. So coming on to the expectations of employers, sorry I took a little bit more time over there. So एक एम्प्लॉयर की जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है या कंपनी में जो भी आपकी टीम का है या फिर कोई एक हायरिंग मैनेजर भी है, ठीक है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? एक बेसिक जब वो रेज्यूमे देखता है और जब आपको बुलाता है कि आपके पास एटलीस्ट एज अ फ्रेशर यू हैव द बेसिक स्किल सेट। ठीक है, बेसिक स्किल सेट में आपके वो सब आ जाएंगे। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सी कोडिंग आती है कि नहीं आती, C++, एंड डू यू नो एक्चुअली नो द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, वो सारी चीजें। मैकेनिकल वालों के लिए बेसिक सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उनके थर्मोडायनेमिक्स या जिस भी फील्ड में वो जाने वाले, ऑटोमोबाइल साइड में जाने वाले, तो उनको एटलीस्ट बेसिक आइडिया, दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंशियल, दे आस्क यू क्वेश्चन हाउ एग्जैक्टली डज गियर सिस्टम वर्क्स। और अगर आप NTPC जैसी कंपनीज या जो पावर साइड में कंपनीज उनमें जाएंगे, दे आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैसे इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज दैट प्रोड्यूस्ड एंड हाउ एग्जैक्टली इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैनेज्ड। सो एक तो बेसिक स्किल सेट हो गया। नेक्स्ट इज हर किसी को भी, द कंपनीज नो दैट एट द स्टार्ट ऑफ आवर करियर्स दे विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि आपको हर चीज आती है, एंड ज्यादातर यही होता है कि हमको हर चीज नहीं आती होती। बट व्हाट दे सी इज दैट इफ यू आर विलिंग टू लर्न, सो व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू, इफ यू आर एबल टू क्रिएट एन इंप्रेशन कि सर आई डू नॉट नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट मैंने अपने कॉलेज टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ, मतलब वी वेंट टू वेरियस कॉलेजेस और हमने वी शोड टीम वर्क, वी शोड थ्रू योर वेरियस इंटर्नशिप्स कि मैंने ये नया चीज ट्राई किया। जब आप ये दिखाते हो ना कि आपने पढ़ाई में शायद से नहीं पढ़ा, ये कॉलेज में आपके करिकुलम में नहीं था, बट ये नई चीज आपने खुद से सीखी, तो इट गिव्स द एम्प्लॉयर एन इम्प्रेशन कि आप को अगर
कल को आप टीम में जाकर के कुछ नया भी सीखना पड़े तो आप सीख सकते हो. सो ऑलवेज शो दैट विलिंगनेस टू लर्न. एंड बिकॉज हम लोग कई चीजें सीखते हैं जो गलत सीख लेते हैं मे बी, तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू अनलर्न एंड रीलर्न एंड देन टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट वी आर इन. एंड वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मेरे को कोई काम दिया गया है कंपनी में, आई हैव टेकन अ प्रोजेक्ट, आई शुड टोटली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इफ आई मेस इट अप, आई शुड बी अकाउंटेबल. और अगर अच्छा किया है तो ऑब्वियसली there are rewards and recognitions in the company, and similarly you should take the complete ownership of the project. Ability to lead का मतलब है ये नहीं कि आपके टीम के अंदर आप मैनेजर हो और आपके टीम के अंदर 5 लोग काम करें. Ability to lead का मतलब ये भी होता है even if you are an individual contributor, जिसको कंपनीज में IC बोलते हैं. You are IC or you are a manager position. If you are an individual contributor, you can take the initiative. कि for example मैं data analysis करता हूँ, so I take the initiative कि हमने last week इसको ऐसे किया था, why don't we try and present the insights in a different manner. So that is the ability to lead, even though I'm not managing someone directly, but I'm leading, I'm taking the initiative. Next is perseverance. हम जितना भी try कर ले, there is a flipping a coin probability कि 50% chance है कि मैं pass होऊंगा या fail होऊंगा. So even if I fail, I should persevere कि और try करते रहे. And then you have to be a smart worker. अगर कोई काम 1 घंटे में हो सकता है तो try and use some sort of techniques like Excel, VBA coding, SQL, everything. I'm talking particularly about data analytics because I belong to that field. And you have to be smart कि अगर मान लो मैंने अभी ज्वाइन किया है और जिसने मेरे को ट्रेनिंग दी वो पर्सन उस काम को 1 घंटा लगाता है. आई शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, पहले तो पूरा समझा. मैं अगर उस 1 घंटे के काम को आधे घंटे तक ले आता हूँ देन वेल एंड गुड. सो दैट इज व्हाट कंपनीज एक्सपेक्ट अस. और जो भी हमें हायर कर रहे हैं दे एक्सपेक्ट कि ये 4-5 स्किल्स हमारे में होनी चाहिए व्हाटएवर इज देयर. सो कैन आई हैव योर सजेशंस इन द चैट विंडो इफ यू थिंक समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम द स्लाइड. Is there anything that you think is missing from the slide, what the employer expects? कोई एक स्किल आपको लगती है जो यहाँ पे मिसिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने मिस कर दिया? अपने चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कुछ आपको जो लगते हैं जो इस 7 पॉइंट्स में कवर नहीं हुई है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर में. Right. So yes, Chetan has given the correct answer. Chetan says communication skills. Exactly true. So right, you're right, Chetan. That is communication skills. So communication skills के ऊपर एक मिनट और लेता हूँ मैं. So अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स फील्ड में हैं या अगर आप अपने कॉलेज में भी आप अगर किसी टीम के साथ कोई प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, आप प्रोजेक्ट करने के बाद आपको एक एक्सटर्नल वाइवा में या फिर अपने प्रेजेंटेशन जब दे रहे होंगे, आपको टीम में करे 5 लोग हैं, ठीक है, और आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है टू टेक अप योर पार्ट, तो क्या होगा, वो 4 लोग आपका पार्ट ले लेंगे और इट विल शो इवन इफ यू मैनेज टू वर्क ऑन दैट प्रेजेंटेशन, इफ यू मैनेज टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट अ लॉट मोर बट यू आर नॉट एबल टू communicate exactly, then there is no use. So right, Chetan, you were bang on point. Communication skill is very, very important. That's what the employers expect apart from all the other 7 skills that were mentioned in the previous slide. So Hitesh, could you quickly cover these MS Office slides? Yeah, so basically अभी हमारा जो मैक्सिमम जॉब्स हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो आपको कम्युनिकेट करना है. बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हर एक जॉब में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड और एनी टाइप ऑफ जॉब, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है MS ऑफिस. कि आपकी जितनी भी जॉब्स हैं वो उसमें आपको या तो डेटा से रिलेटेड होगा या आपको कुछ प्रिंट करना होगा या कुछ भी होगा, आपको यू हैव टू यूज द MS ऑफिस इन एनी वे, लाइक इधर इन एक्सेल, इन पावर पॉइंट और इन वर्ड. तो ये चीजें आप एटलीस्ट अपने कॉलेज से पढ़ गए हैं, तो जब आप एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो उसे एटलीस्ट आपको ये सिखाना नहीं पड़ेगा. तो दिस इज क्वाइट अ बिग आई वुड से कि एडवांटेज, कि अगर आप इतना ये 3 चीजें भी एटलीस्ट आप बेसिक सीख लेते हैं तो अपने जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप हो सके तो इसको यूज कीजिए. अभी जैसे आपका 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, वहां पे आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है. 7th सेमेस्टर पीपल आर लिसनिंग,
तो आपको एक पूरा का पूरा अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक बुक, जहाँ पे आप अपनी थीसिस लिख के देते हो। तो वो आप एक तरीके से कह सकते हो कि वो जब आप करोगे तो उसको पूरी ईमानदारी से करिए, पूरी ऑनेस्टी से सीखिए। एक एक पार्ट आपको जो वर्ड का है वो सीखने को मिलेगा वहां से। तो आप वर्ड को तो आप छोड़ दीजिए कि वो 8th सेमेस्टर जो है आपका, वो 8th सेमेस्टर आपको वर्ड बहुत अच्छे से सिखाएगा। देन पावर पॉइंट इज लाइक आपको बेसिक, आप कॉम्पिटिशन में पार्ट कीजिए जहाँ पे आपको पीपीटी देनी है। तो उससे क्या होगा, आपको बेसिक जो चीजें बोल कि कैसे पीपीटी रेडी करते हैं, क्या क्या बेसिक टूल्स होते हैं, आप उससे नो हाउ हो जाओगे। उसके बाद आता है एक्सेल। तो एक्सेल में थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि इन तीनों टूल्स में से सबसे ज्यादा जो यूज होता है और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जिसे मैं बोलूंगा वो है एक्सेल। सो सर्वेश, इफ यू कैन गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। So, although in the interest of times, I'll quickly go over the Excel slide, and then we have a very, very interesting session for you. So that will be a mock interview. For that, I'll like all of you to keep your pen and papers ready. You might need a pen and paper to think. वो एक एक्टिविटी है जो आपने करनी है. So all computer science, mechanical, electrical, electronics, जितने भी branches के students हैं, so keep one pen and paper handy with you. Let me quickly cover Excel. Why Excel is so useful. It's very, very useful in my career or in any of the career that you would enter into after your college, is because college अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको इतना अंडररेटेड सॉफ्टवेयर इसलिए माना गया है कि कॉलेज जब स्कूल में हमें पढ़ाया गया था तो हमें सिर्फ इतना पढ़ाया गया था, एक्सेल में टेबल दिख रहा है, टेबल में डेटा एंट्री करनी है. But Excel is much, much more than just a data entry tool. There are a lot of complex analysis that you can do. Just to give you an idea, companies की total valuation, companies की balance sheet, companies के P&Ls सिर्फ और सिर्फ Excel पे बनते हैं. Companies के financial models. So go on to LinkedIn Learning, go on to EDX website and just see कि what all Excel can do. You will see financial modeling. हमारी टीम पूरी बजटिंग एक्सरसाइज, पूरी रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन पूरे एक्सेल पे प्रेजेंट करती है टू आवर to the higher management or the senior management, C-level executive. Excel आपको चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है जल्दी काम कराने के लिए, and then it will only increase your salary. अगर आपको Excel आता है ना, so it will increase your salary. So एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया कि जिन लोगों को Microsoft Excel आता था, they were making $22.66 per hour versus on average, and versus $20.14 per hour compared to the peers who did not know Excel. So on an average, that's roughly $20 per 8-hour workday and $100 per week. So imagine एक simple computer program जो बहुत difficult नहीं है can create a big impact. So recommendation number 1 या और भी, but learn Excel. So this is very, very important thing. So I hope you have your pen and paper ready. So ये Excel के related we have mentioned 2 courses जो मैंने personally follow किए थे. So EDX पे एक Microsoft का course है, Analyzing and Visualizing Data with Excel. Go and learn on that course. Free है, it is free to audit. अगर आपको certificate चाहिए Microsoft का, then you can pay. But अगर आपको सिर्फ सीखना है college level के लिए और अपने करियर वाइज के लिए, बेसिक के लिए, तो आपको ये सिर्फ ऑडिट भी कर लोगे तो देयर इज लॉट टू लर्न एंड ट्राई एंड यूटिलाइज दिस एक्सेल नॉलेज इन एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स. ओके, सो ये सारे ऑप्शंस है, EDX, Coursera, Shaw Academy, Udemy and Josh Skills. This we can share it on your with Deepika and all your HOD so that you can also take advantage of these such websites. So I was talking about time for a mock interview. So usually जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 3 या 4 राउंड होते हैं, जिसमें क्योंकि आज हमारे पास सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, we'll cover the one that is highlighted in yellow. So are we all ready with the pen and paper? Quickly tell me in the chat window. Quickly, yes or no, because this is gonna be interesting. So you all are competing against each other. ठीक है, पेन और पेपर साथ में रख लेना. We have 5 questions and this way we'll select 5 candidates out of you total. Let me see. Yes. Swati Kundan says yes. Ashutosh, Ujjwal, Amandeep, Sakshi. Yes, great. So pen and paper are ready and wo questions hai. So I hope you'll be totally honest with yourself और इसको एक चैलेंज लेके करोगे. गूगल नहीं करोगे. अगर इवन इफ यू गूगल तो ठीक है, मतलब गूगल करना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर.
कि कैसे हुआ है, क्योंकि यही जाके कंपनीज में जब इंटरव्यू दोगे वहां पे चांस तो होगा नहीं गूगल करने का, तो इट्स अ रियल लाइफ सिमुलेशन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी क्विकली प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 1. आपके आंसर्स चैट विंडो में देने हैं. सो यस, इसका आंसर आप लोग को चैट विंडो में बताना है. So whoever answers the question have to explain their approach as well. I've not received any responses in the chat window, guys. हम ट्राई तो कर रहे हैं ना. Yes, so first Sahil Bhatia is correct. The answer is 10%. So congratulations, Sahil. You were the first one to answer it correctly. So could you unmute yourself, or I'll ask Deepika to unmute Sahil from computer science, and he'll tell us what approach did he use to come up at the answer. So no, Gulshan, this is no integral and differential. It is very simple question. ये 10th class से भी पहले जो हमने maths पढ़ी है ना उसमें से है ये. So yes, Sahil, could you unmute yourself? Sahil from computer science, if you could tell us the approach that you used to arrive at the answer. Hi, Sahil. Yes. It's just nothing. I just calculated in my mind. There is no straightforward approach. No, right. You calculated in mind. What exactly give us the process that you used to calculate in our mind? Sir, the calculation of interest, that 2 years and that 4 years. Mhm. So that might be 10%. You randomly. I just try to calculate with different amount of interest, like Okay. 10%, 5%, and 10% was matching the answer. So Okay, so what I see is you multiplied 5,000 with 2 becomes 10,000, then you multiplied 3,000 with 4 and you added up, and that it comes up to be 22,000, and you just see what 2,200 is, what percentage of 22,000 is. That approach you followed? yeah, we can also follow that approach, but I tried a different one. So you what you did was you जैसे होता है कि hit and trial से कि 22 Yeah, you interest can say. फिर Sir, we 100 rupees. Yeah. Amandeep also wants to explain this. Can we unmute Who him? wants to? Amandeep. Yeah, Amandeep, yes, quickly if you can. Hello. Hi, Amandeep, yes. Hello sir. Good morning sir. Good morning, yes, Aman. सर एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमारे को दो प्रिंसिपल दे रखे हैं एंड रेट नहीं दे रखा है एंड टाइम दे रखे हैं दो, जिनका टोटल अमाउंट हमारे को जो उसको बैक मिला है वो 2200 है. तो हम प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100 के फॉर्मूले से दो प्रिंसिपल दे रखे हैं, तो दो बार प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम प्लस प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू 2200 करके वहां पर हम आर निकाल सकते हैं. सिंपल है. Right, correct. Exactly true. Yes, Amandeep, you were right. So Sara Vatva in the chat window is also given the right option. So yes, this was an easy question. You all were right. Sara, Amandeep, and Sahil, you all were right. Congratulations. Next, so now let's quickly move on to a next question, and it is here. So थोड़े difficult होते जाएंगे question. We started with easy one. थोड़ा slightly difficult. Quickly दिमाग लगाओ क्या आंसर हो सकता है इसका.
अभी रिस्पॉन्स नहीं आया किसी का. आई होप आप लोग ट्राई करके देख रहे हो अपने कॉपीज पे. ट्राई, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आशीष, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10% नहीं है इसका आंसर. सो हमें टाइम बताना एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम वो पूरा कंप्यूटर असेंबल हो जाएगा. No Mahir Mauvar from mechanical. 4 p.m. is not the correct answer. 7 p.m. is also not the correct answer. Shiv. Anyone else apart from Mahir and Shiv? Both mechanical students have given answers. 4 p.m., 7 p.m. So it's a time and work question problem. Yes, so finally we got the correct answer from Tushar. He's from electronics branch. Yes, Tushar and Pranay, you both are correct. Could you unmute yourself and tell me the approach that you used to arrive at the answer? Either Tushar Sharma or Pranay Dua. Good morning, sir. Hi, good morning, Tushar. Yes. What is the approach that you used? Sir, 6 workers 10 hour में कंप्यूटर को असेंबल करते हैं. वो 1 work 10/6. Oh, sorry, one worker will do in? 10/6 hour. Wrong. Imagine अगर 6 लोग 10 घंटे में कर रहे हैं तो एक बंदा 10/6, तो वो तो बहुत कम हो गया. 1 point something हो गया, 1.5 समथिंग हो गया. तो एक बंदा 1.5 घंटे में करेगा, और 6 हम लोग कह रहे हैं कि 6 बंदे 10 घंटे में कर रहे हैं, तो एक बंदा 1.5 आवर्स में कर लेगा. रॉन्ग. टेक्निकली रॉन्ग हो गया है तो. Hello. Yes. Yeah, Pranay Dua this side. Hi Pranay. Yes, good morning. Yes, Pranay. Sir, as we could see, 6 workers were making in 10 hours, Mhm. and from 9 a.m. to 3 p.m. it was 6 hours. Right. Then again, if we per hour one extra workers was being added, so that was approx 4 persons. So just minus from 10 hours 6 hours. It was Sorry, go back again. 9 to 3 it's 6 hours, and then after each hour, मतलब 3 से 4 के बीच में एक और नया बंदा जुड़ गया. 4 से 5 में एक और नया बंदा जुड़ गया. 5 से 6 में नया बंदा जुड़ गया. अब नाउ यू आर सेइंग कि 6 बजे एग्जैक्टली 6 PM पे पूरा काम खत्म हो गया था, है ना? राइट. सो दोबारा बताओ अप्रोच. 4 workers were added at least after 3 p.m. 4 और 3? After 3 p.m. each one worker was added. ठीक है. तो 4 वर्कर हो गए 10 hours. तो इनिशियली 6 थे, 9 से 3 तक 6 वर्कर थे. उसके बाद 3 से 4 में 7 हो गए, 4 से 5 में 8 हो गए, 5 से 6 में 9 हो गए, ना कि 10. क्योंकि आपने लिखा ना 6 बजे पूरा काम खत्म हो जाएगा. तो मैंने 10 hours से -4 कर दिया था. नहीं, वो गलत है. 10 तो नहीं है. That's not the correct approach. Sahil, if you could. Yes, Sahil can explain. He says Sahil from computers. Hello. Is Sahil there? Hello. Sahil, are you there? Yes, sir. Yes. So there are 6 workers are taking 10 hours to complete a work. Correct. Mhm. It means we can say that the 10 into 6 are 60 units of work. Right. You're right. And one worker is doing 6 units of work in an hour. True. So 9 to 3, we can say 36 units of work is complete. Right. Then on this, on 3 to 4, the time limit of 3 to 4,
one worker is added at 3 p.m. Right. So 7 units of work will be done in 1 hour, next 1 hour. Right. Correct. So 36 plus 7, we can say 43. Right. Then on next hour, that is 3 to 4, or 4 to 5. 8 units of work will be done, and that is 51. Right. And on next hour, 5 to 6, there will be a 9 unit of works will be done, and that is complete 60. Amazing. So congratulations, Sahil, you are correct this time. So a big round of applause for Sahil. He used the correct approach. इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना था, इसमें बेसिक कॉमन सेंस लगाना था. दैट साहिल यूज्ड की अगर 6 लोग 10 घंटे में एक कंप्यूटर को असेंबल करते हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि 10 into 6 इज द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज टू बी डन. तो 60 यूनिट्स का वर्क अगर हमें करना है तो एक बंदा दैट मीन्स 6 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, तो 6 बंदे 10 घंटे तक 60 कर रहे हैं. अब 9 से 3 बजे तक 60 कर रहे हैं. एंड देन एक एक वर्कर ऐड हो रहा है, तो 6 के बाद 7 हुआ तो वो 7 यूनिट करा. एक यूनिट अगर एक वर्कर कर रहे हैं, देन 8 यूनिट एंड देन 9 यूनिट. तो कंबाइन करेंगे उसको 36 plus 7 plus 8 plus 9 गिव्स अस 60 यूनिट्स ऑफ वर्क जो हमें करना था पूरा टोटल. राइट शिव साहिल. So going on to our next question. It's a time and distance problem. Anybody trying this answer? Tushar, Sahil, Shiv, Kunal, Pranay, Amit, Purushottam Singh, Piyush, Ankur Kumar, Mahir. सो जस्ट अ हिंट, इसका कॉन्सेप्ट आपने प्रॉबली 10th क्लास से पहले भी पढ़ा है, बट यू गॉट अ रिवीजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग योर क्लास 11th. Are we trying? अगर कोई ट्राई कर रहा है प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए. Five, 6 participants raised their hand. Amandeep, Mahir, Ashutosh, Ankur, Sara, and Gulshan and Sandeep. So Deepika, if you could unmute one of those and they can tell us what answer they have arrived at and the approach. Is it 125, sir? No, it's not 125. Yes, Kundan has given the correct answer. Kundan, yes, Kundan and Amandeep. So Deepika, if you could unmute Kundan from computer science.
हेलो, Hi Kundan. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Yes Kundan. सर Please go क्वेश्चन ahead. तो इजी था, अपना 11th का कॉन्सेप्ट लगा है। हाँ बताओ। सर जैसे हमने देखा दोनों क्वेश्चन में जो दिया है, दोनों ट्रेन, एक ट्रेन निकली है 6 बजे और एक ट्रेन निकली 6:45 पे, तो अप्रोक्स टाइम डिफरेंस हो गया 45 मिनट। Right. और एक का ट्रैवलिंग स्पीड है 100 किलोमीटर और दूसरे का 136। Right. तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, टाइम डिफरेंस 45 किलोमीटर है और दोनों के डिस्टेंस को हम एक्स मान के चलते हैं, हाँ, जिसमें दिल्ली के लिए। मुंबई टू दिल्ली is X kilometers total. यस सर, यस सर। तो उस एक्स किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए जितना भी टाइम लगा है उसको मैं टी ले लेता हूँ, फिर टोटल टाइम जो हो जाएगा टी, और जो टाइम डिफरेंस था अपना पहले 45 किलोमीटर, और उसको अगर हम टाइम डिफरेंस 45 किलोमीटर नहीं 45 मिनट। 45 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 45 मिनट्स। तो अगर मैं टोटल टाइम देखूं एक्स किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए वो, और जो टाइम डिफरेंस था वो, तो मैंने 45 मिनट्स को फ्रैक्शन में चेंज कर रखा है पहले, ठीक है। तो वो आएगा अप्रोक्स 3/4 आवर्स, 3/4। ठीक है। 3/4 ऑफ आवर। तो हमारा टोटल टाइम यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा 4t + 3/4। ठीक है। अब अपना वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। स्पीड यहाँ से स्पीड को क्या पुट किया आपने? सर स्पीड दोनों के लिए अलग अलग है, पहले एक तो 100 के लिए चल रही थी और एक 136 के लिए चल रही थी। बट देन जब आपने सॉरी सॉरी सॉरी, दो इक्वेशंस हाँ बनाई, हाँ जब दो इक्वेशंस बनी, एक इक्वेशन बन गई 100 के साथ, एक इक्वेशन बन गई 136 के साथ, उसके बाद सर उसको सॉल्व किया मैंने, एक तो 100 के लिए सॉल्व किया, फिर उसमें टाइम अपना 40 + 3, और टोटल यहाँ पे टाइम ट्रेवल कितना था 136 किलोमीटर पर आवर। सर उसी को सॉल्व करके निकाला मैंने। एग्जैक्ट क्या आंसर आया आपका? 283 किलोमीटर अप्रोक्स। इसमें अगर मैं सॉल्व करूँ और तो 283.3 समथिंग आएगा। ठीक है। So right, you were right. So if you are aware about the concept of relative speed, so that was utilized in this, कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक ट्रेन 136 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। तो अगर हम 45 मिनट का हेड स्टार्ट देते हैं एक ट्रेन को, जो पहले ट्रेन निकल गई उसके बाद 45 मिनट बाद दूसरी निकली, तो पहली ट्रेन ऑलरेडी 75 किलोमीटर अहेड है, क्योंकि वो अगर एक घंटे में 100 किलोमीटर करती है तो 3/4 ऑफ 1 आवर में वो 75 किलोमीटर कवर करेगी। अब जब हम देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होता है, रिलेटिवली उन दोनों की स्पीड माइनस होती है। रिलेटिवली द ट्रेन दैट इज फास्टर इज मूविंग एट 136 minus 100, दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड। जो सेकंड जो ट्रेन है, क्योंकि वो 36 किलोमीटर आवर पर स्पीड से तेज चल रही है। अगर यही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो हम दोनों की स्पीड को ऐड करते हैं, राइट। तो जब दूसरे ट्रेन की रिलेटिव स्पीड हमने निकाली दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, तो अब हमें बस सिंपल टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला लगाना है कि सेकंड ट्रेन जब फर्स्ट ट्रेन को कैच करेगी, वो टाइम हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 75 अपॉन में जो हमने स्पीड अभी 36 की निकाली थी, सो इक्वल्स टू समवेयर अराउंड 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। अब उस टाइम निकल गया 2 घंटे में वो 75 किलोमीटर ट्रैवल करेगा अगर वो इस रिलेटिव स्पीड से चल रहा है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम निकाल दिया हमने इनटू द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन वाज 136, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 283 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर्स बाद वो दोनों ट्रेन एक साथ में होंगी। ये आंसर करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम लोग ट्राई कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन को. पीछे तक अभी तक हमने एप्टीट्यूड के मैथ्स के क्वेश्चंस देखे, अब ये रीजनिंग साइड ऑफ थिंग्स पे हैं. सो लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के ऊपर है. Gulshan has said 6 times. No, that is wrong. 6 times is incorrect. Mahir said 40 times. Really? No, that is incorrect. Shiva 4, that is not correct. So let's wait for another 1 minute until that you can try. After that, I'll explain the answer. No, 5 is incorrect. Himanshu 12 is incorrect. Rishabh 2 is incorrect. Pradeep 10 is incorrect. Sakshi 6 is incorrect. Kundan says minimum 1 or 2 not clear. So there is a clear answer to this question. There is a definite answer which is correct, and there is no sort of probability कि 1 or 2 में से एक कुछ होगा. There is a direct answer to this. Gulshan computer science says it depends upon the mixture of third jar. Aman says its answer is n, where n1. No, that is not. So don't see this problem as an engineering problem. ये मतलब इसमें कोई भी fancy formulas वगैरह कुछ use नहीं होना. It's just basic common sense. Try कर सकते हो, गलत try करो. मतलब if someone says 6, if he or she can explain 6 कैसे आया, तो yes, go ahead. Mahir says million. Okay, right. Tushar has said 1. Tushar is correct. So Tushar Sharma. Okay, Tushar, can you tell me the approach? Tushar, are you there? Tushar, unmute yourself. Hello. Tushar, you there? I think there is some issue. Tushar, if you're not able to speak, I'll tell the correct answer. I'll tell the approach. Kundan has also shared the correct answer. 1. Kundan, could you just tell us quickly कैसे आया? Kundan, are you there? Hello. Hi Kundan, yes. सर एक्चुअली इस केस में हाँ जार कुंदन, मिस बोलो.
मिस लेबल कर रखे हैं, क्योंकि किसी भी जार में अगर हम पिक करने जाते हैं और ठीक उसका अपोजिट निकलेगा तो मिसप्लेस ही होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट जार में जाते हैं जिसमें एप्पल और ऑरेंजेस दोनों है, हेलो। और हेलो हेलो Yeah, Kundan, we can hear you. हाँ जी, हाँ जी, बोलो। Hi Kundan, are you telling the answer? यस सर, हेलो हाँ जी, बताओ। सर। एक्चुअली इस केस में मिस लेबल हो रखे हैं, क्योंकि अगर हम एक लेते हैं अपना जिसमें एप्पल और ऑरेंज दोनों है, और अगर उसमें से एप्पल मिलेगा तो वो जार तो गलत होना चाहिए। सही है। और अगर सेम इसी तरह अगर हम ऑरेंज वाले में जाते हैं, तो सबसे पहले आपने एप्पल ऑरेंजेस वाले जार पे गए। यस सर, उसमें क्या किया? उसमें मैंने एक फ्रूट निकाला ठीक जिसमें है, मेरे को एप्पल मिला, एप्पल मिला, ठीक है, ओके। तो इससे मैं यही कंक्लूड करूंगा कि वो मिस लेबल हो रखा है। ठीक है, तो मैं तो उसे वो कहूंगा कि वो एप्पल वाला जार है। करेक्ट, ठीक है, उसके और बाद? फिर नेक्स्ट कंडीशन पे जाता हूँ जिसमें ऑरेंजेस है, ठीक है, और उसमें से ऑरेंज नहीं निकलेगा या फिर एप्पल निकले। एप्पल तो निकल चुका है। एप्पल तो पहले वाले में आप कह रहे हो एप्पल ऑरेंजेस सर में। क्योंकि लेकिन यहाँ पे मिसप्लेसिंग भी तो हो रखी है। नहीं, तो जब आपने एप्पल ऑरेंजेस वाले में गए, एप्पल ऑरेंजेस में कह दिया आपने एप्पल, केवल केवल एप्पल निकला, तो दैट मीन्स वो एप्पल हो गया। अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एप्पल है। तो अगर उसमें से ऑरेंज भी निकलता है, फिर थर्ड केस में ऑरेंज, सर फिर भी मिनिमम 1 होना चाहिए। एक्चुअली मैं नहीं 2 में भी नहीं, कंफ्यूज हूँ। मिनिमम नहीं, करो करो, थिंक थिंक। 2 वाले में भी कंफ्यूज है कि 2 भी हो सकता है, क्योंकि एक मिक्स वाला जार है। तो मैं करूँ आंसर? हाँ दीपिका, यू कैन। हाँ, सर सबसे पहले हम जाएंगे जिसमें लिखा है ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, उस जार के पास। मिक्स अगर उस मिक्स। हाँ, द मिक्स्ड वन, द मिक्स्ड वन, हम उसमें से निकालेंगे। अगर उसमें एप्पल निकलता है या एक चीज निकलती है, मतलब इतना तो हमें श्योर है कि वो मिस लेबल्ड है, तो इसलिए हाँ, हमें ये अगर उसमें से एप्पल निकलता है यानी वो एप्पल का जार था, मिक्स्ड वाला जार नहीं था, तो वो हमने एप्पल का जार हो गया, तो वो करेक्शन होगी एप्पल का। बाकी जो बचे हम उसमें ऑब्वियसली वो मिस लेबल्ड है तो उनके आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो सबके करेक्ट लेबल हो जाएंगे। तो मेन इसमें था कि मिस लेबल्ड है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वो गलत ही है, कोई उनमें correct. से सही नहीं लगा। So Deepika and Kundan, you both were correct, but let me share कि कैसे इसको आंसर करना है इन इंटरव्यू। सबसे पहले हमें पूरी कंडीशंस बतानी होती है जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है। यस, कि जस्ट टू इंश्योर दिस इज द कंडीशन, हम बोर्ड पे दिखाएंगे कि ये एप्पल ऑरेंज वाला जार है, ये ऑरेंज वाला है, एप्पल वाला है। यू आर सेइंग कि हर जार पे जो भी पहले से लेबल लगा है वो गलत है, हिंट से यस। तो कंडीशन नंबर 1 ये मिल गई, जो गिवन, जैसे हम स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, गिवन इज दिस। अब हमारा अप्रोच बताएंगे। हम सबसे पहले जाएंगे एप्पल्स ऑरेंजेस वाले जार में। अब उस पे अगर एप्पल ऑरेंज लिखा हुआ है तो हमें 100% पता है कि वो गलत है। या उसमें मिक्सचर तो नहीं है, या तो उसमें केवल केवल एप्पल है, या तो केवल केवल ऑरेंज है। मैंने उसमें से एक फ्रूट निकाला, मान लो वो एप्पल निकल गया। अगर वो एप्पल निकल गया तो फॉर श्योर मैं उसकी एप्पल ऑरेंज की लेबल को हटा के लिख दूंगा इट इज करेक्ट, मतलब इसका जो करेक्ट लेबल है वो एप्पल हो गया। अब एक दूसरा जार पड़ा था वहां पे जो जिसपे लिखा था एप्पल है, कि इसमें सिर्फ एप्पल है। अब जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर ही लिया कि भाई एप्पल ऑरेंजेस वाले में एप्पल है, वो गलत लिखा हुआ था, तो ये एप्पल कैसे हो सकता है? तो ये एप्पल नहीं होगा। तो उस वो अपने आप ही दूसरा फ्रूट बन गया एप्पल ऑरेंज, और वो बन गया हमारा ऑरेंज, क्योंकि वो एप्पल ऑरेंज नहीं हो सकता, उसमें बन गया ऑरेंज, जो जिसमें ऑरेंज लिखा है दैट इज आवर मिक्सचर, राइट? So let's move on to our last question of the day. Yeah.
Someone is saying 0 to 2 times incorrect. Anil 2 time, Ashutosh. So सबसे पहले सही आंसर दिया है so Mahir from mechanical, he said 1. So Mahir, yes, could you unmute yourself or tell us your approach? हेलो हाँ जी Mahir, yes. हेलो गुड मॉर्निंग सर। Good morning Mahir. सर हम एक बार जब रूम से बाहर आएंगे तो देखेंगे कि मतलब बल्ब चालू है कि नहीं, तो पता चल जाएगा कि कौन सा है कि नहीं। इट्स जस्ट अ गेस सर। नहीं गलत। सो हमारे पास 3 स्विच है, हम लोग इस रूम में हैं अभी, आप स्क्रीन देख रहे हो, हम लोग हैं R1 में, इसमें 3 स्विचेस हैं और एक रूम है R2। हमें पता लगाना है कि स्विच 1 या स्विच 2 या स्विच 3 से कौन सा एग्जैक्ट स्विच है जो कॉरेस्पॉन्ड करता है इस बल्ब को। तो हमें कितने मिनिमम ट्राइज लगेंगे कि हम उस रूम में जाके देखना पड़े कि हम करेक्टली आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये पक्का कंफर्म तरीके से कि ये स्विच 1 है या स्विच 2 है या स्विच 3 है। Next is so thank you Mahir. Next is MD Sartaj. MD Sartaj, आपका करेक्ट आंसर है 1, बट हाउ? सर अगर हम रूम के बाहर जाके अगर पहले स्विच को थोड़ी देर के लिए ऑन करके छोड़ दें और फिर से ऑफ कर दें, फिर सेकंड वाले को ऑन करके थर्ड वाले को ऑफ करके अंदर चले जाएं, तो हम अगर बल्ब को टच करके देखें तो जो बल्ब एक सेकंड सरताज, एक बार दोबारा स्टार्ट अगेन। सर अगर मैं पहले स्विच को ऑन करता हूं और थोड़ी देर के लिए ऑन करने के बाद फिर ऑफ कर देता हूं। S1 को आपने इमेजिन S1 को आपने ऑन कर दिया। यस सर, ठीक उसे है, थोड़ी देर के लिए मैंने ऑन ही रहने दिया, ठीक है। फिर इसको ऑफ करके फिर सेकंड वाले को ऑन कर देता। अब फिर इसको ऑफ किया और इसको ऑन कर दिया। यस सर। ठीक है सर अगर मैं अब रूम में जाता हूं और तीनों बल्ब को टच करूं, अब आप इस रूम में तीनों बल्ब में एक ही बल्ब है, 3 स्विच है, बल्ब एक है। फिर बल्ब एक है, फिर हाँ। सर अप्रोच गलत है फिर मेरी। हमें तो नहीं गो अहेड यार, मतलब एक ही बल्ब है, 3 बल्ब होते तो और डिफिकल्ट होता प्रॉब्लम। हमारे पास एक ही बल्ब है, हमें बस ये नहीं पता कि कौन से स्विच से वो बल्ब ऑन होएगा। इमेजिन आप किसी रूम में पहली बार जा रहे हो। सर आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है सर। अगर बल्ब अभी भी ऑन है तो स्विच नंबर 2 से होगा, राइट। सर अगर वो ऑफ है तो वो 3 या 1 में से होगा। लेकिन सर अगर मैं बल्ब को टच करूं और अगर वो हीटेड है तो मतलब मैंने पहले से उसे ऑन कर रखा था, मतलब स्विच 1 होगा उसका फिर आंसर। अच्छा, अगर हीटेड नहीं है तो सर फिर स्विच 3 होगा उसका आंसर। अगर हीटेड भी नहीं है और ऑन भी नहीं है फिर सर वो थर्ड होगा फिर, क्योंकि मैंने अभी तक उसे ऑन ही नहीं करा था। ठीक है, राइट। सो राइट, गुड अप्रोच सरताज, यू आर करेक्ट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो और सबको समझ में आ गया जो सरताज ने बताया अपने अभी सबको समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर थी सबसे पहले? कई बार हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नहीं समझ रहे थे। फॉर एग्जांपल सरताज को लगा कि 3 बल्ब्स हैं, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया, बट देन अगर उनको बताया गया कि एक ही बल्ब है, देन वो सही आंसर उन्होंने दिया। सो एक ही बल्ब है। सो मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, देयर इज रूम 1 एंड रूम 2, देयर आर 3 स्विचेस एंड देयर इज ओनली 1 बल्ब। तो मैं रैंडमली कोई भी एक स्विच को सिलेक्ट करूंगा, रैंडमली 1/3 प्रोबेबिलिटी है, एक ही स्विच को सिलेक्ट किया। मान लो मैंने S1 को सिलेक्ट किया, S1 को मैंने ऑन कर दिया और मैं 2 मिनट तक रूम में रहा, रूम 1 में ही। अब मैंने क्या किया, मैंने S1 को ऑफ किया, उसी समय मैंने S2 को ऑन कर दिया। अब मैं गया रूम 1 से यहाँ के रूम 2 में, मैंने चेक किया अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि या तो बल्ब ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर पहली प्रोबेबिलिटी पे चले, अगर बल्ब ऑन है तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि स्विच 2 इज द करेक्ट आंसर, और हमें एक ही बारी में पता लगा लेंगे। अब बाय चांस बल्ब ऑन नहीं था, बल्ब ऑफ था, बल्ब ऑफ के केस में मैं क्या करूंगा, मैं इस बल्ब को
आई टच करके देखूंगा, एंड इफ द बल्ब इज हॉट, अगर वो गर्म होगा, तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि गर्म इसलिए हुआ क्योंकि मैंने स्विच 1 को 2-3 मिनट तक ऑन रखा था, और वो बल्ब उससे, जब बल्ब थोड़ा टाइम तक जलता है तो थोड़ा हीट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू अ फिलामेंट, जो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, तो उसकी वजह से आई अराइव एट द आंसर कि S1 वाज द करेक्ट स्विच। अब तीसरी सिचुएशन ये आती है, ना तो बल्ब ऑन है, मतलब बेसिकली बल्ब ऑफ है, और ना ही जब मैंने टच करके देखा ना ही वो गर्म था, यानी कि ना तो पहला स्विच काम करता है ना तो दूसरा स्विच काम करता है, तो एलिमिनेशन अप्रोच से थर्ड स्विच इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है, मेरे को एक ही बारी में पता लगा सकता हूँ कि कौन सा स्विच से बल्ब ऑन होएगा। राइट, क्लियर हो गया है? Yes, that was quite a good example. ठीक है, so guys, that was it from our side, and one thing more that I'd like to share is, since we have taken a lot of your time और आपके एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो एक और चीज हमने गैदर करी थी फ्रॉम योर सीनियर्स, जो कि हम आपको वेट अ मिनट आपको दिखाना चाहते हैं। गिव मी अ मिनट प्लीज। Also guys, आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हैं और कुछ भी डाउट्स है तो आप एक बार चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। हम एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चंस कुछ अगर आपके हैं तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके दिखते हैं, You can always reach out to us on your LinkedIn, on our LinkedIn platforms. Deepika can share our LinkedIn profiles with you. So okay, so one last thing that will take 2 minutes or not more than that. So कल हमने सोचा कि यार हम लोग अपने आइडियाज, अपने थिंकिंग प्रोसेस तो आपसे शेयर करेंगे, सो व्हाई नॉट वी आल्सो आस्क आवर सीनियर्स, जो आज आपसे रूबरू तो नहीं हो पाए, बट उनके विचारों को आप लोग जाने कि वो लोग क्या सोचते हैं कि आप लोग को किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, जो कि 4 साल आपके पास है, अगर कोई सेकेंड ईयर में 2 साल है, जितने भी साल बचे, बट दिस इज द गोल्डन पीरियड, इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो एक एक एडवाइस हमने सीनियर्स से भी कैप्चर किया। यहाँ पे नाम नहीं आएंगे कि किसने हमें क्या बताया, बट उनके एडवाइसेस को आई रिकमेंड यू टू इसको नोट करो। कोई भी 10-11 एडवाइस है, उनमें से कोई भी एक एडवाइस को भी अगर आप फॉलो करोगे, so you will be in a much better position. Okay, so so I hope you'll see you are able to see my screen, yes or no? Yes, okay, so पहला एक किसी सीनियर ने आपको एडवाइस दिया है, भाई कुछ करो ना करो एक्सेल पढ़ लो, है ना, वो हमने भी कवर किया था। सो एक्सेल को डोंट थिंक इट्स अ बेबी सॉफ्टवेयर, या बच्चे लोग करते हैं भाई, ये तो स्कूल के बच्चे लोग करते हैं। एक्सेल इज अ वेरी वेरी वास्ट सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को अकॉम्प्लिश करा सकते हैं, और इंजीनियरिंग की जॉब्स में भी, या फिर मैनेजमेंट की जॉब में, अकाउंटिंग, जितने भी जॉब्स है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में भी, अगर आपको ये लगता है ना कि डेटा साइंस में सिर्फ पाइथन, आर, मशीन लर्निंग यूज हो सकती है, देन यू आर completely mistaken. Most of the time analysts and scientists are only cleaning data. उनको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करके उन्हें एक्सेल में लाके डेटा को क्लीन करना है, मैनिपुलेट करना है, डेटा रैंगलिंग करनी है, वो सारा काम एक्सेल में आता है। उसी के बाद ही आप उसके एनालिसिस या मॉडल बना सकते हो डेटा साइंस के अदर टूल्स के। सो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स आवर रिक्वेस्ट टू यू टू नॉट टू सी एक्सेल as a normal software. You learn Excel in your college time. Next, someone is asking कि Excel basic करना है या advanced? So Akash, yes, that's a good question. I'll say if you have the basic knowledge of Excel, if you know how to prepare reports, how to prepare pivot tables, how to, for example, अगर आपके पास कुछ data होता है, I hope you are from whichever branch you are from. So अगर आपके पास कुछ भी डेटा होता है और आपको उसको क्लास में एक प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है ग्राफ्स के थ्रू, वो सब अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है, स्टार्ट विद दोस थिंग्स, स्टार्ट विद एप्लीकेशन बेस्ड एक्सेल। अगर आप एक्सेल को ऐसे पढ़ोगे ना कि यार ये फॉर्मूला लर्न करना है, तो कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन माइंड कि मेरे को मेरी क्लास में मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था, मैंने मार्केट रिसर्च किया था, मेरे को उसके इनपुट्स अपनी क्लास को प्रेजेंट करने, या फिर आपका कोई बिजनेस आइडिया है, ठीक है, आप किसी बिजनेस प्लान कंपटीशन में जाते हो, आपका जो आइडिया है, आपने मार्केट रिसर्च किया कि आज के टाइम में फॉर एग्जांपल आपको खोलना था
आपको नया ओला खोलना है, फॉर एग्जांपल ओला या उबर जैसी कोई कंपनी खोलनी है, तो आप पूरा मार्केट रिसर्च जब करोगे कि यार अर्बन एरियाज में ये अवेलेबिलिटी है, ये कस्टमर की प्रेफरेंसेस है, इतना कस्टमर पैसे दे सकते हैं, इतने किलोमीटर पर आवर का वो चार्ज करते हैं, जो मेरा बिजनेस प्लान वो इस तरीके से काम करेगा, या हाउ यू विल डिफरेंशिएट योर बिजनेस फ्रॉम ऑलरेडी अवेलेबल कस्टमर्स इन द मार्केट। तो वो सारी की सारी आप एनालिसिस एक्सेल पे कर सकते हो। तो ओनली एडवाइस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब हमारे माइंड में रहेगा तो हम आंसर तक बेटर तरीके से पहुंच पाएंगे। सो आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेरी। गुलशन पूछ रहे कि आप मैटलैब क्यों नहीं यूज कर सकते बेसिकली। तो द थिंग इज कि मैटलैब कोई भी आप एक एज अ कंपनी काम कर रहे होते हो तो आपको वो सॉफ्टवेयर परचेज भी करने होते हैं, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप पहले सिर्फ एक छोटे से काम के लिए पूरा एक सॉफ्टवेयर यूज करें। हाँ, आप वही काम अगर एक्सेल में डाल के वही सेम डाटा अगर आप उसे कर सकते हैं तो आई थिंक व्हाई नॉट। तो इसलिए ये बेसिक टूल है जो सबको चाहिए होता है, और जस्ट एमएस ऑफिस तो हर उसके लिए चाहिए होता है हमें। डोंट वरी, इसका इफ यू साइन अप फॉर अ स्टूडेंट लाइसेंस तो एमएस ऑफिस का ट्रायल मिल वर्जन जाता है। आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर आप ट्रायल वर्जन भी डाउनलोड करते हो फॉर अ मंथ और सो, तो यू कैन प्रैक्टिस और उस पर काम कर सकते हो। आकाश, हमने एक कोर्स जो बताया था आप उसको ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे हाँ, आपको एडवांस की क्या क्या चीजें हैं वो उसमें मिल जाएगी। एडवांस लेवल में अगर आप जाओगे तो VBA कोडिंग होती है, दैट इज यूज्ड फॉर ऑटोमेशन, दैट यू कैन ऑलवेज टेक अप आफ्टर लर्निंग सम बेसिक स्किल्स ऑफ एक्सेल। एंड अगेन सेइंग कि कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को माइंड में रख के देन स्टार्ट लर्निंग एक्सेल, ओके। एक सॉरी आई वाज नॉट एबल टू कवर दिस। सो एक स्टूडेंट आपके सीनियर कहते हैं कि लर्न अबाउट पर्सनल फाइनेंस, taxes, loans, economy, stock market. These will actually help you accumulate and stabilize your wealth creation. This is very true. जब आप कंपनीज में काम करोगे और आपकी सैलरी आपको रिसीव करोगे तो आपको पता है कि हमें ITR भरना होता है, दैट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एनीबडी हु इज एन अर्निंग सिटीजन ऑफ इंडिया। सो इनिशियली जब आप देखते हो कि आपको कॉलेज में या फिर स्कूल में कभी टैक्सेस की नॉलेज दी ही नहीं गई। अब ऐसा तो है नहीं कि एक इंजीनियर को टैक्स की नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों को जरूरत है, CA को जरूरत है। आपको भी बेसिक ITR फाइल करना आना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि पैसे से पैसा कैसा बनता है, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। व्हाट आर द वेरियस इन्वेस्टमेंट मेथड्स दैट यू कैन यूज टू एक्यूमुलेट वेल्थ, ओके। नेक्स्ट विल क्विकली गो थ्रू ऑल। वन सीनियर सेज कि डू नॉट स्ट्रेस ऑन योर बैकलॉग्स। अगर आपका रीअपीयर आ गई है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको रीअपीयर क्लियर करना हर सेमेस्टर शुड बी योर फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी एंड यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड फॉर दैट। बट अगर इफ एट ऑल अगर कोई बैकलॉग बचता भी है तो उस टाइम को, जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम में को यूटिलाइज करो कि जब आप कुछ रेलेवेंट कोर्सेज जो आप पढ़ना चाहते हो उसको कंप्लीट करो। जरूरी नहीं कि ऑफलाइन मेथड में, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो काफी कुछ। सो दिस इज वन एडवाइस शेयर्ड बाय सीनियर। नेक्स्ट इज फोकस मोर ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स। जब कंप्यूटर साइंस की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पे आ जाते हैं। जब मैकेनिकल की बात करें तो देयर आर सारे ही सब्जेक्ट्स एक तरीके से कोर हैं, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको किस एरिया में जाना है। थर्मल साइंसेस में जाना है तो फोकस मोर ऑन हीट एंड मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स। एंड अगर आपको एटलीस्ट अगर आप मैकेनिकल से कर रहे हैं तो एटलीस्ट बस एक हम थोड़ा सा और बोलेंगे कि जैसे बेसिक जो डिजाइन, बेसिक एटलीस्ट ड्राइंग्स पढ़ना और रिकॉग्नाइज करना और अपने कोई भी आइडियाज हैं उनको बना पाना, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट, दैट इज क्वाइट नेसेसरी। तो एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं वो आपको जरूर आनी चाहिए। So along with studies, be a part of various clubs and societies that college have, learn new skills and focus on your holistic development. So this is again a great suggestion. जितने I'm sure आपके college में clubs होंगे. I was a part of Corporate Connect Club and I was a part of this Tech Fest that was organized in our college. So basically idea is कि do not hesitate in going up for activities, taking part in activities that you have never done before. Take part in group discussions, go to various colleges and just go and present yourself, give a presentation, no matter how good or bad it is, just try. So basically this is the time to try new things, to try and experiment everything that you can. Be a good listener. एक सीनियर ने तो 5-6 चीजें लिखी है। Be a good listener, always ask questions why, हर चीज को क्वेश्चन करो, ऐसा क्यों कर सकते हैं, इससे बेटर तरीके से क्यों नहीं कर सकते।
नो मैटर हाउ स्टूपिड, जैसे हम कह रहे थे कि क्वेश्चन कितना भी स्टूपिड हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। और ऑब्वियसली हम सबके दिमाग में सिली क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिवियल क्वेश्चंस आते हैं। इट्स ओके अगर आपको कैंपस में जॉब नहीं मिलता है, इट्स परफेक्टली फाइन। मेनी ऑफ अस सीनियर्स डिड नॉट गेट अ जॉब ऑन द कैंपस, बट क्योंकि हम लोग के बेसिक्स करेक्ट थे, वी वेंट आउट देयर एंड हमने ऑफ कैंपस जॉब्स भी सिलेक्ट करे। ऑफ कैंपस के अलावा हमने इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग ने पढ़ाई में कुछ किया और उसके बाद में हमने देखा कि हम लोग अपने स्किल्स वहां से भी ग्रो कर सकते हैं। तो नेवर एवर टेक स्ट्रेस की जॉब कॉलेज से ही मिलेगा मिलेगा मिलेगा। So be confident, so you can always get a job out of the campus as well. Just focus on learning at the moment. Keep learning, update yourself. Computer science वालों के लिए तो काफी जरूरी है, जैसे जैसे टाइम जाता रहता है तो नए नए टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं। So you have to update yourself. There is no other way out. And read, of course, read all the books that you can. Read newspapers. जो भी इंटरेस्ट करता है ट्राई करो, एक दो बुक से ट्राई, फिक्शन नॉन फिक्शन, कोई एक जो इंटरेस्ट आएगा। मतलब 10 बुक में से एक बुक पे तो इंटरेस्ट आएगा। मैं नहीं कह रहा बड़ी बड़ी बुक्स ले लो, 20 मतलब 100 पेज, 20 200 पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, 4 बुक सामने, 10 पेज पढ़ो, किसी एक में इंटरेस्ट आएगा उसी को कंटिन्यू करो। Engineers, someone says engineers are a talented lot of people and they need to understand what they are capable of doing. It is not necessary that they are from IIT or any other top institute to prove their worth, but they need to experiment both with life and science. That's true. We are not from IIT. We are from your same college. तो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो. Simply. Do not compare yourself with others. वही question अगर हम IIT से compare करें, इधर से compare करें, you are different. You just have to be the better version of yourself. जैसा आप कल थे, जितनी knowledge आपको कल थी, just make sure कि आज आपको उससे 1% knowledge ज़्यादा है, आधा percent भी 0.0001% knowledge भी ज़्यादा है, तो you are moving in the right direction. Always know that small growth, छोटे छोटे steps में grow करना is much better than degrowth or no growth at all. ओके, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक बहुत सारे और भी थे हमारे पास, तो आई थिंक ये बहुत एंडलेस चलता रहेगा अभी तो, क्योंकि बहुत सारे हम एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिक ये है कि आप अपनी जो बेसिक स्किल जो हमने बताई है 3-4, तो जितनी भी उन पे अपने आप को एक्सेल कर सकते हो उसके अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा जस्ट टू गेट अ गुड स्टैंड ऑन योर सेल्फ। कॉलेज से जॉब मिले ना मिले, आप अपने ऊपर इतना भरोसा कर पाओगे कि हाँ, कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देगा तो मैं अपने आप को प्रूव करता हूँ। ओके गुलशन, सो दिस इज वन फाइनल टिप जो हमारी तरफ से और हमारे सीनियर्स की तरफ से, आपके सीनियर्स की तरफ से आपके लिए, कि दिस इज द कंक्लूजन आई विल से ऑफ आवर सेशन इज डोंट जस्ट फोकस ऑन स्टडीज। मोस्ट ऑफ योर लर्निंग, ज्यादातर जो भी आप सीखोगे वो आप अपनी क्लासरूम से बाहर सीखोगे। दिस इज ब्लंट ट्रूथ। ओके, सो मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज पॉसिबल। ये टाइम है मिस्टेक करने का, एक्सपेरिमेंट करने का। mess things up, probably आप करोगे तो चीजें कुछ गलत होंगी, सही होंगी, but always remember to keep experimenting. So thank you. With this, me and Hitesh sign off from you guys, and we are very much elated that you gave us this opportunity. और सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो, गलत होता है गलत हो, सही होता है सही हो, एंड हम लोग से कुछ भी कभी भी लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। So thank you Deepika, thank you various HODs from various departments, students to come up in huge number. उन्होंने टाइम निकाला 1-1.5 घंटा। Although session थोड़ा सा extend हो गया, we are sorry for that. We also have our offices in another 13-14 minutes. So thank you guys. Thank you Sarvesh and Hitesh. Thank you very much. It was a nice session. मुझे लगता है कि most practical session, क्योंकि इट वाज एन इंटरेक्टिव सेशन। आप लोगों ने जैसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए, मॉक इंटरव्यूज के लिए क्वेश्चन दिए। मैं बीच में थोड़ी देर के लिए आपका सेशन मैं देख नहीं पाया था, एक और मीटिंग आ गई थी मेरी, तो लेकिन बाद में मैंने ज्वाइन किया, बीच में 45 मिनट्स का मैं मिस कर गया आपका। तो मैंने देखा कि आप लोग किस तरह से प्रैक्टिकल वे में स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। तो इट वाज अ नाइस सेशन, आई थिंक मोस्ट प्रैक्टिकल सेशंस। क्योंकि जब एज ए हम, तभी मैं कह रहा था कि एलुमनाई ही सबसे बेटर जो है ना गाइड कर सकता है स्टूडेंट्स को। आपके सीनियर्स जो है ना, डियर स्टूडेंट्स, आपके सीनियर्स आपको कितने अच्छे से गाइड कर सकते हैं। कई बार टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में गैप जो आ जाता है, उस गैप को किस तरह से आपने फिल किया है। हम लोग जो चीज़ बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते, वो आप लोगों ने बड़ी नाइसली जो है उसको आपने पहुंचाया है। और जो आपने लास्ट में जो बात कही है कि नो द पावर ऑफ पावर पॉइंट एंड एक्सेल योरसेल्फ इन एक्सेल,
सो दैट वाज नाइस। और मैं खुद बताता हूँ कि अपनी पीएचडी में 90% पीएचडी में मैंने एक्सेल ही यूज़ किया है। लास्ट में Right, कुछ sir. सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हमने, डिज़ाइन एक्सपर्ट्स, मैटलैब वगैरह, लेकिन एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पावर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने इस जो अदर स्किल्स हैं अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम के अलावा जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा मायने करती हैं, क्योंकि बीटेक तो सभी कर लेते हैं, एक परसेंटेज, एक गुड परसेंटेज सभी अटेन कर लेते हैं, लेकिन आपके पास क्या एक्स्ट्रा है। और जैसा कि इन्होंने बताया सर ने कि किस तरह से आप एक फील्ड से दूसरी तरफ फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं, और इवन टेक्निकल से नॉन टेक्निकल की तरफ भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। सो दैट वाज नाइस। सो थैंक यू सर्वेश एंड हितेश वंस अगेन।